name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to study Class 7, Unit 3, Chapter number 4, Growing Up as Girls and Boys. Okay, so this is the first chapter we are going to do in the third unit, which is that of gender. इसका जो हम next chapter करेंगे, that is also to do with gender roles and how gender plays an impact in politics in our society. So let's get started with this foundational chapter that will build onto the next chapter. Okay, so let's do the first unit, which is that of growing up in Samoa in the 1920s. So यहाँ पर एक Samoan islands की बात हुई है, which are part of the larger group of small islands in southwest part of Pacific Ocean. मतलब United States के शायद थोड़ा पास. In the 1920s, according to research reports, in the Samoan society, children did not go to the school. ठीक है, अभी हम लोग स्कूल जाते हैं in 1920s में, लेकिन Samoan islands में children did not go to school. Okay, क्या करते थे वो लोग? They learned many things such as how to take care of children, how to do household work from older children and from adults. Fishing was a very important activity on the islands. Young people therefore learned to undertake long fishing expeditions. ठीक है, तो उनको जैसे आप स्कूल जा रहे हो, आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं थी. What they did was they used to learn how a family is raised, how children are raised, and they used to learn going outdoors, fishing करना, खाने पीने की कैसे directly जिसे कहते हैं ना एक life skills उनको पढ़ाए जाते थे rather than कि education दी जाए. ठीक है. So as soon as babies could walk, their mothers and adults no longer looked after them. तो जैसे हमारे यहाँ तो 5, 6, 7 years के बच्चे हो जाते हैं, फिर भी उनको मम्मी स्कूल छोड़ने जा रही है, लेने जा रही है, बाहर बैठी है, कभी कोई बच्चा रो रहा है, उसको खाना खाया नहीं खाया और मुंह में खाने की टुकड़ा दे रही है. वेरी पैम्पर्ड चिल्ड्रन वी आर. सो बट दैट डज नॉट हैपन इन समोआ. वहां पर क्या होता है, जैसे ही बच्चा चलना शुरू करता है, सो अप्रोक्सीमेटली 2 years, 1 year, 1.5, 2 years of age, स्टॉप, बस अपना ध्यान रख लेगा वो खुद. ठीक है, वेरी इंडिपेंडेंट वे ऑफ फंक्शनिंग. ओके, सो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर द यंगर सिबलिंग. सो इट इज नॉट जस्ट द ड्यूटी ऑफ द गर्ल्स बट बोथ. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे लिखा है कि फिशिंग एक्सपीडिशंस में जो मछली पकड़ने के लिए बाहर जाते हैं, पहले बॉयज जाते थे, एंड देन गर्ल्स आल्सो आफ्टर अ सर्टेन एज गर्ल्स आल्सो स्टार्ट गोइंग एंड hunt on fishing trips and worked in plantations, learn how to weave baskets. All these life skills were learned. ठीक है. कुकिंग जो है वो cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. हमारे उल्टा होता है, मम्मी खाना बनाती है जनरली हमारे 90% of the households में, and papa can help or sometimes not at all. But here boys are doing most of the work of the kitchen and girls are just helping out a bit. Okay, so now अब next heading करते हैं, growing up a male in Madhya Pradesh in the 1960s. So let's compare this situation जो 1920s में Samoa Islands में थी to 1960s में जो हमारे एक Indian state of मध्य प्रदेश में थी. Okay, so boys and girls went to separate schools. एक बहुत ही different designs होते थे. गर्ल्स के स्कूल में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड टाइप का था जहाँ पे गर्ल्स खेल सकते थे एंड दे कुड बी सुपरवाइज्ड, राइट, देख सकते थे कि गर्ल्स वही हैं. और बॉयज के स्कूल में दे आर सेइंग कि एक अटैच्ड एक बिग सर्फेस स्पेस था, वहां पे जाके बॉयज खेल सकते थे. व्हाई? बिकॉज फ्रॉम अ वेरी यंग एज गर्ल्स they have to be, I mean, in our society, unfortunately, it's very sad that people have to watch over them, so that none of the mishappenings happen to the girls, because it is much more likely कि a girl will be there और बेचारे को कोई kidnap कर ले या does any kind of abuse to her. So it is more likely for an Indian girl or a woman to have faced such an issue. What a shame. And उस टाइम पे 1960s में भी था, so इसीलिए उनको सामने के कोर्टयार्ड में देखते रहते थे that they're not going anywhere else. Okay, as these girls walked on the street, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play out tricks with their bicycles. तो रोड पे जिस रोड से वो स्कूल जाते थे वहां पे बॉयज मस्ती कर रहे होते थे, कभी साइकिल घुमा रहे हैं, कभी ऐसे घूम रहे हैं, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हैं. बट गर्ल्स के लिए that was only a pathway to come to school and go out of school. तो घर से सीधा घर, स्कूल से सीधा घर और घर से सीधा स्कूल, बीच में कोई मस्ती और फालतू वेलाबंदी नहीं. So अब after reading these two examples we realize that there are many ways of growing up. ठीक है, एक ये तरीका भी है, एक वो Samoan Islands में जो था बिना एजुकेशन के एंड फिशिंग पे जा रहे हैं और बॉयज खाना बना रहे हैं किचन में, वो भी एक तरीका है. ठीक है. We also realize that societies make clear distinction between boys and girls. This begins from a very young age. For example, we are given different toys to play with.
तो boys are often given cars to play with, trucks to play with, and girls are often given dolls. I really hope that by the time this chapter airs, because we are in 2020 right now, so this is not happening anymore. ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को सिर्फ डॉल्स के साथ ही खेलना चाहिए, बिकॉज वी कैन गो विद जेंडर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, और एनीवन कैन प्ले विद एनीवन, बट या दिस यूज्ड टू बी देयर स्पेशली प्रीवियसली इन द सोसाइटी. ठीक है, टॉयज क्या होते हैं, दे बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मेन एंड वुमेन. फॉर एग्जांपल, अगर आप कार्स या ट्रक से खेल रहे हो, सो ऑब्वियसली इट इज ओवर एम्फोसाइज्ड फॉर मेन टू ड्राइव, कि उनको तो ड्राइविंग आनी चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस आनी चाहिए, उनको कोई प्रोफेशनली एक डिग्री होनी चाहिए कुछ उनके पास, एक प्रोफेशन उनका बहुत सॉलिड होना चाहिए. ठीक है, और विमेन अगर डॉल्स के साथ खेल रही हैं तो इट इज एम्फोसाइज्ड दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर गेस व्हाट या फिजिकल अपीयरेंस, देयर ब्यूटी, उनको अपनी फेस से, अपने बालों से, अपनी आंखों से, व्हाटएवर, जो एक कपड़ों से, ये सब चीजों से बहुत ध्यान रखना है. दे हैव टू बी वेल ग्रूम्ड. सो दिस इज द एम्फोसिस दैट इज बीइंग गिवन थ्रू the toys that they are playing with. Okay, in most societies including our own, the roles of men and women play or the work they do are not valued equally. So हमारे यहाँ men and women के roles जो हैं, they are not very similar, and the work they do is also not valued equally. That means the work of the men in our society is valued more than the work of women in our society. अब आप बोलोगे कि अब तो ऐसा नहीं है मैम, 2020 है, अब ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पुरानी बातें थी जब गांव में जो लेडीज हैं एक्चुअली असली में वही डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं. बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी. हम अभी आगे पढ़ेंगे, आप देखना जरूर. ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन अब एग्जिस्ट नहीं करता, जेंडर रोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, देन जस्ट इमेजिन एन इवनिंग जहाँ पे आपके कोई भी फैमिली फ्रेंड्स आए हुए हैं आपके घर पे. ठीक है, तो उनकी भी पूरी फैमिली है, आपकी भी पूरी फैमिली है, 3-4 फैमिलीज हैं. सो यू ऑल आर हैंगिंग आउट टुगेदर. और किचन में कौन है? किचन में हमेशा हमेशा देयर विल बी फीमेल्स. आपने कभी ऐसा देखा है कि सारी फीमेल्स बाहर बैठ के चिल कर रही हैं या बात कर रही हैं, और अंदर सारे मेल्स किचन में कुकिंग कर रहे हैं और काम बना रहे हैं और डिशेस सर्व कर रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं होता. तो अगर होता है, दैट इज वेरी गुड. यू हैव रियली, योर फैमिली इज वेरी प्रोग्रेसिव, एंड दैट्स ग्रेट. दैट्स अ ग्रेट चेंज इन आवर सोसाइटी. बट from my personal experience and from what I have usually seen 90% of the time, what also other people have seen statistically also, women are more likely to stay in the kitchen and cook. तो ये सब चीजें तो अभी भी exist करती हैं. ठीक है, now the change has come that women are allowed to work, and but ultimately even if they are going out to work, people assume that घर की भी responsibility इनकी ही है. ठीक है, बाहर तो जा ही रहे हो, अब बाहर भी जाओ, वर्क भी करो ऑफिस में, और घर पे आके खाना भी बनाओ एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एज वेल. ठीक है, सो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम काइंड ऑफ डुअल. सो वी मस्ट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द अदर जेंडर. इवन इफ अ मैन इज ओवरबर्डन्ड, इट्स नॉट फेयर टू हिम. सो वी मस्ट 50-50 शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ईच अदर. हमें याद रखना चाहिए. सो लेट्स कम टू द एग्जाम्पल ऑफ ऑन पेज नंबर 47. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये. माई मदर डज नॉट वर्क. सो यहाँ पे एक बात हो रही है कि at the यहाँ पे फर्स्ट हम कॉमेंट पढ़ते हैं. माँ, वी आर गोइंग टू स्कूल एक्सकर्शन. रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर्स. Can't you take a holiday from the office and volunteer? Harmeet's father always comes because of comes for excursions because she doesn't work. ठीक है, तो वो कह रही है, Shonali, how can you say that? You know that Jaspreet aunty is up at 5 a.m. and every day she is doing all the housework. तो यहाँ पे वही बात हो रही है. तो एक दिन क्या होता है कि उनकी मम्मी कहती है कि चलो भाई, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, जसप्रीत जी हैं, जो उसकी मम्मी है सोनाली की, शी इज सेइंग कि सॉरी सोनाली की फ्रेंड की, शी इज सेइंग कि ओके फाइन, आई विल टेक एन ऑफ, ऑल्दो क्योंकि मैं पूरे दिन हाउस वाइफ हूँ, घर पे काम करती हूँ, तो ऐसा करती हूँ, मैं आज ऑफ लेती हूँ और मैं बाहर जाती हूँ और तुम सब लोग घर का काम करो. सो उनके पेरेंट्स, जो उनके फादर है, उनकी सिस्टर है, वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो ठीक है, आज मम्मी की छुट्टी है, आज हम सारा काम करेंगे. ठीक है, अब सुबह सुबह क्या है, वो नाश्ता मांग रहे हैं, तो नाश्ता नहीं है. उन्होंने बोला मैं तो स्ट्राइक पे हूँ, नाश्ता तो मैंने बनाया नहीं. तो उसके फादर इधर उधर घूम रहे हैं. ओफो, स्कूल बस आ गई है बाहर से. नाउ दे आर लाइक कि बच्चों को किसने रेडी किया, बच्चे भी रेडी नहीं है. चलो किसी तरीके से वो उनको गाड़ी में ड्रॉप करके आए बच्चों को. फिर उन्होंने बोला कि चलो टिफिन दे दो. उन्होंने कहा टिफिन भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ. अगेन उन्होंने उनको थोड़े पैसे दे दिए कि आज कैंटीन में से कुछ खा लेना स्कूल की. ठीक है तो 6 बजे फिर उन्होंने बोला कि चाय है. उनका ओहो, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ, चाय तो मैं दूंगी नहीं. उनके हस्बैंड ने बोला उनको कि चाय दे दो, उन्होंने मना कर दिया अगेन. ठीक है, फिर जब वो वापस आए तो घर पूरा का पूरा फैला हुआ था. तो उन्होंने बोला ये क्या है, ये क्या, कौन सी ये तरीका है घर को रखने का.
उन्होंने बोला कि ऐसे थोड़ी है, ये तो उसी कंडीशन में रहेगा जिस कंडीशन में आप इसको छोड़ के गए थे. So the house is also not clean. So then she is wondering, I wonder if they still believe I don't work. And now I have to remind them that Chachi and Chachi are coming for dinner. So even after all this, someone is coming for dinner. So even they have to prepare dinner. तो सुबह से लेके रात तक का इतना ज्यादा काम है for a domestic worker, for a housewife, कि it is not to be underestimated. ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती. It's just that she is a homemaker. Okay, and the fact that our society really undervalues homework, मतलब जो एक हमारी unpaid mothers का जो work है, that is very unfair. ठीक है, that's why I was saying कि man versus woman जो है वो बड़ा ही एक equally distribution नहीं है. Man के work को ज्यादा emphasis दिया जाता है. ठीक है. So let's come. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, elderly, sick members, lies with women. Okay, because women are thought of to be कि ये तो ज़्यादा polite है, ये ज़्यादा caring होती हैं ladies, अंदर से better cleaners होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है. It is just कि they from the very start of their life they have been modeled into that kind of behavior. शुरू से लड़कियों को बोला जाता है कि ये करो, ऐसे करो, अपने अपीयरेंस का ध्यान रखो, थोड़ा सा आओ किचन में आओ, हेल्प करवाओ, है ना. प्रॉबेबली लड़कों को उस एम्फेसिस से नहीं बोला जाता कि आओ किचन में जरा रोटी सेकवाओ या आज की सब्जी तुम बनाओगे, ऐसे नहीं बोला जाता. दैट्स व्हाई गर्ल्स आर मॉडल्ड इनटू दैट बिहेवियर. सो ऑब्वियसली दे विल बिकम बेटर एट दोस टास्क्स. It's not that just by being a girl someone becomes naturally better at cooking or cleaning. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. So as we have seen, the work that women do within the house is not recognized as work. It is assumed that this is something that comes naturally to women, as I was telling you. It therefore does not require pay. इसके लिए पैसे देने की क्या जरूरत है? मम्मी को खाना बनाने के लिए पैसे थोड़ी ना देते हैं. लेकिन अगर मम्मी काम नहीं करेंगी और आप रेस्टोरेंट में जाके खाओगे तो रेस्टोरेंट वाले को तो पैसे दोगे ना. सो एक मतलब आप आगे जाके पढ़ोगे, आई थिंक क्लास 11-12 में एक चीज होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मतलब एक काम को करवाना के लिए जितने पैसे लग रहे हैं वर्सेस if you stop doing that work, if someone stops doing that work, then how much you will have to pay. For example, अगर मम्मी ने घर का खाना बनाना बंद कर दिया तो आप रेस्टोरेंट को कितने पैसे दोगे. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है. एंड you will read more about it in higher classes. तो इसी वजह से हमारा जो हाउस वर्क है वो डी वैल्यू हो जाता है. ठीक है, कम वैल्यू मिलती है उसको. Let's come to the next main heading, which is that of lives of domestic workers. ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है हमारी जो डोमेस्टिक हेल्प वाली आंटी आती हैं घर पे, आपके आती होंगी, या अगर आपके पेरेंट्स डोमेस्टिक है एज डोमेस्टिक हेल्पर्स काम करते हैं, देन दैट. ओके, सो यहाँ पे मेलनी की बात हो रही है. मेलनी, हाँ, डोमेस्टिक वर्कर हु हैज टू से हु हैज सम एक्सपीरियंसेस, जो अपना बता रही है कि दिल्ली में उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं काम करने के लिए. My first job was with a rich family that lived in a 3-storied house. The mem saab was very strange as she would shout to get anything or any work done. My work was in the kitchen. There were 2 other girls who did the cleaning. One day I would begin, the work at 5 o'clock. For breakfast, we would have a cup of tea and do sukhi roti. That's so sad. We would never get a third roti. In the evening, when I cooked food, the 2 other girls would beg me, so I would give them an extra roti. And I would secretly give it to them and make extra one for myself. We were so hungry after working throughout the day. We could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell up in the cold. And, I also felt that I was scared of Mem Saab, but also felt angry and humiliated. Did we not work all day? Don't we deserve to be treated with respect? आप देखोगे कई जैसे घरों में भी हम लोग जाते थे जब मैं छोटी थी, बिकॉज हम लोग उनको हमेशा आंटी या मैम या कुछ ऐसे करके बुलाते थे. जो भी हमारे यहाँ आंटी काम करने के लिए आती थी, who used to help us out, and I would often visit some of my friends' house or some of my parents' friends' house. अब उनके जो बच्चे होते थे वो उनके आंटी को उनके नाम से बुलाते थे, that ये इधर आओ, ऐसे करो, वैसे करो. And the children used to talk so in such a bad way with the domestic workers that even like मेरी मम्मी को भी बहुत गुस्सा आता था. And I would also feel like, oh my god, no manners at all. एक तो वो आपका help कर रही है, ऊपर से you are being such a spoiled brat about it. So this is very important that हम लोग जो हमारे घर में लोग काम करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, उनको बहुत एक रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, है ना.
वी शुड गिव देम फूड, बिकॉज आप देखो कि आपके फादर या मदर एक ऑफिस में अगर काम करते हैं तो उनके पास पीएफ है, उनके पास सैटरडे संडे होता है, उनके पास एक ग्रेचुटी होती है, इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस, हर चीज होती है। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके ये सब राइट्स नहीं है, ना उनका पीएफ होता, जो उनको एक दिस मेनी इयर्स ऑफ सर्विस के बाद एक बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, ना उनकी पेंशन होती, ना उनकी मेडिकल इंश्योरेंस होती, तो ना उनका सैटरडे संडे होता है ना। लोग इतने झिकझिक करते हैं उनसे कि महीने में 2 छुट्टी भी नहीं देते, 1 छुट्टी भी नहीं देते। दैट इज वेरी हार्श। आप खुद सैटरडे संडे की छुट्टी लेके बैठे हो ना, सो उनको भी आपको यू शुड ऑलवेज लेट देम टेक इट और हेल्प देम आउट इन एनी अदर वे। या आप उनकी सैलरी में से एक छोटा सा जैसे एक पोर्शन काट के, एक तो सबसे पहली बात आप उनको एक अच्छी सैलरी दो। Don't try to cheap out on the salary that you give to your domestic workers. ठीक है, these are some of the ways by which you can help them out. उनकी सैलरी का छोटा सा एक पार्ट काट के अपने साथ स्टोर कर सकते हो, and you can ask them if they wish to pay. और उसका आप एक 50-60 हजार रुपए जितने भी बनते हैं उनके एंड ऑफ द सर्विस पे उनको एक साथ दे सकते हो एज अ पीएफ। सो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो राइट्स हैं, इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी दे आर फाइटिंग फॉर इट। एंड वी शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट जो सर्दियां हैं वी ऑलवेज मेक श्योर, हमारे घर में भी ऐसा होता है कि चप्पल पहन के आते हैं वो हमेशा। हम उनको बोलते हैं देखो आपका ठंडा लगेगा, या अगर किसी ने सॉक्स नहीं पहनी, माय मम्मा विल ऑलवेज गिव देम सॉक्स कि आप सॉक्स पहन लो एंड देन यू शुड वर्क, अगर आपको चप्पल में अनकंफर्टेबल है भी तो। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स वी शुड रियली मेक श्योर ऑफ। उनको उन्हीं प्लेट्स में खाना दीजिए जिसमें आप खाना खाते हैं। दे आर द वंस हु आर वॉशिंग इट, so please treat them with respect, and this is what this chapter is about also. ठीक है, so again they are doing a lot of physical work, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, in rural areas where they have to fetch water, firewood, all this requires a lot of lifting strength and lot of physical work. ठीक है, so standing for long hours इन द स्टोव, गर्मी होती है, आप 1 मिनट किचन में नहीं खड़े हो पाओगे, मम्मी की रोटी बनाती रहती है सबके लिए, या फिर आंटी आपकी रोटी बना रही है। सो प्लीज ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट एंड गिव देम देयर फाइनेंशियल ड्यू ऑल्सो। ठीक है, उनको अपना फाइनेंशियल आप जो उनका हक है वो भी दीजिए। सो यहाँ पर एक स्टेटिस्टिकल टेबल भी आप देख सकते हो कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन आर अनपेड फॉर हाउस वर्क। सो लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक विच इज दैट ऑफ वुमेन्स वर्क इन इक्वालिटी। ठीक है, तो बेसिकली दिस होल चैप्टर हैज बीन अबाउट दैट ओनली कि low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter, it is a country wide matter. ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको गारंटी करता है that nobody can be discriminated on the basis of their gender. So why is this discrimination still happening in the country? It is the role of the government, it is the role of the citizens to establish laws that can help end this discrimination. ठीक है, so अच्छा, so because women are unpaid for their work, obviously वो जो, and of course people think that naturally women are better caregivers, वो ज्यादा अच्छे से फैमिली रेज कर सकती हैं, it is the duty of the woman to raise a child. For example, बहुत एक लोग ऐसा समझते हैं, it is a myth. This actually impacts on their careers and their school going also. ठीक है, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि mothers who have just given birth to their child often will be pressurized by their families to quit the job, क्योंकि भाई मम्मी हैं तो उनको बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर जो स्कूल जाना चाहते हैं, जो और आगे पढ़ना चाहते हैं, बड़ी दीदी है आपकी या कोई ऐसा है, दे आर फोर्स्ड कि नहीं आप अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखो, स्कूल या फिर कॉलेज अभी नहीं जाना है। All these things are happening. ठीक है, they are happening. It's not like it's a myth. So to combat this, government has set up Anganwadis or child care centers in several villages. जहां पर 30 से ज्यादा वर्किंग वुमेन होती है, वहां पे क्रच फैसिलिटी एस्टैब्लिश करना कंपल्सरी कर दिया गवर्नमेंट ने। उससे क्या होता है, जो क्रच में बच्चों का ध्यान रखते हैं वुमेन, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जो उनकी मदर्स हैं वो बाहर एम्प्लॉयमेंट ढूंढने जा सकती हैं विदाउट वरिंग अबाउट देयर किड्स कि वो कहाँ रहेंगे, अकेले रहेंगे, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। दे कैन स्टे टुगेदर इन द क्रच। ठीक है, गवर्नमेंट हैज सेट दीज अप एंड many more things the government needs to do in order to uplift women and make the status of man's work and women's work equal. ठीक है, so I hope you understood this chapter. If you have any questions, feel free to comment and do subscribe to the channel. Thank you for listening to me.